हेलो एवरीवन, आई एम अमित श्रीवास्तव फ्रॉम ब्रेन मेंटर्स और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं VS कोड। सो VS कोड बेसिकली एक लाइट वेट ओपन सोर्स कोड एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है एंड इट इज़ पर्सनली माई फेवरेट। इट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन द Electron.js एंड इट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये मैक, विंडोज़, लिनक्स किसी भी चल सकता है और इसके साथ थाउजेंड ऑफ एक्सटेंशंस मिलती हैं। कुछ ऑफिशियल हैं और कुछ कम्युनिटीज़ से प्रोवाइड होती है। सो इट्स जस्ट एन एडिटर बट इट कैन बिहेव लाइक एन IDE. So let's start using the VS Code. So using this VS Code, what we need to download the VS Code first of all. So VS Code download we will write here and I click on this. तो बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो या फिर आप मैक यूज़ कर रहे हो या फिर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो इफ आई एम यूजिंग अ मैक, सो आई क्लिक ऑन दिस and it start for the downloading. So it is asking for the download and I click on the save and it is get downloaded. So it is just a zip version. आपके पास डाउनलोड होगा, आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे and you are able to use it. So meanwhile I just cancel it because I already downloaded it just to save the time. So I am just opening my VS Code. So here it is. This is my VS Code and it is coming with this welcome note. So I just cross this welcome note और मैं इसके बाद यहाँ जाता हूँ. This section is basically an explorer section. That's a project explorer. So we need to just click on this and the project explorers get open. जैसे हमारे पास ये project explorer open होता है हमारे पास यहाँ पर जाकर, now from here we can open a folder जहाँ पर हम अपना कोड लिखना चाहते हैं. So I open a folder. I click on this open folder. So either I can go on this open folder or I can go on file open. So from here, from documents, I create my first project. So I create a new folder and I just named it first project. And here it is. And now I just open it. ये मेरे पास open हो जाता है. Welcome note आता है. I cross this. This is the window. This area is entirely called your Project Explorer window. And from this Explorer window, I can create my first file. I just click on this and I just named it index.html. So जैसे हम index.html पे क्लिक करते हैं, we will able to see the code editor. तो यहाँ से हम अपना कोड, कोड विंडो यहाँ पर से आता है और फिर हम यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं. अब अगर हम इसके आइकन पे ध्यान दें तो index.html पे एक आइकन आ रहा है, दैट इज़ HTML5 आइकन, प्लस इसकी एक थीम आ रही है, दैट इज़ अ ब्लूइश थीम. अब ये सब कैसे सेट होता है? फॉर दिस आई जस्ट नीड सम एक्सटेंशंस इन माई मशीन. तो अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये आइकन, दिस इज़ फॉर द एक्सटेंशंस. इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशंस, मैंने सबसे पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करी, दैट इज़ कॉल्ड VS कोड आइकन्स. दिस इज़ द एक्सटेंशन विच इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय द VS कोड टीम. तो इसको आप सबसे पहले इंस्टॉल करोगे. दिस इंस्टॉल बटन इज़ नॉट कमिंग बिकॉज आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट. सो यू नीड टू इंस्टॉल दिस थिंग फर्स्ट. Once you install this thing, you need to configure this thing. उसे configure करने के लिए go to the code and there is an option called preferences and then there is an option called settings. तो Mac में ये code नाम से अलग से मेन्यू आता है and there is a preferences and settings. In Windows it is inside the file. तो if I just go to this settings section और settings के यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिखता है, that is called file icon theme. And in this file icon theme there is an option coming that is VS Code icon. That is I choose it because मैंने सबसे पहले उसको इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद VS Code icons को चूज़ किया. That's why I am able to see this icons. Or either if you don't like this VS Code icons, so you can use something called material icon. So there is another theme called material icon theme. This is, you can also use this thing. So you have the choice, VS Code icons आप use करो as a theme for icon or material icon theme. So from this particular thing I am using VS Code icon themes. So this thing is coming up. Now I am going to write the code, but I want to use some theme. So this is what I am using, some dark kind of theme, and that theme is also coming from this extension. आप यहाँ जाओगे extension पे और यहाँ से which I am using, that is a Cobalt 2. So if you are interested in this theme, so you can install this theme, that is Cobalt 2, which is built by the WesBoss. So once you download this thing, because install button is not coming up, it means I already installed it. Once this is installed, so go to the code preferences again. विंडोज़ के लिए फाइल में जाके प्रेफरेंसेस एंड देन फ्रॉम हेयर देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड कलर थीम. एंड फ्रॉम द कलर थीम
यू विल चूज देयर आर प्लेंटी ऑफ थीम्स विच इज़ कमिंग अप, और यहाँ से जो मैंने इंस्टॉल करके इट इज़ कोबाल्ट 2. सो you have the light theme, so it would be like this. So if I change it again, यहाँ से फिर से जाते हैं color theme पे and I choose Cobalt 2. So here I am. So it is get change. So now we have the icon theme, we have the code editor theme. अब हम यहाँ से कोड लिखना शुरू करते हैं. So for writing this code, I just press exclamation sign and then I do tab. This is called Emmet. ये Emmet कोड है. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड कोडिंग, सो इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ Emmet कोडिंग. तो जैसे आप एक्सप्लेनेशन साइन और टैब प्रेस करते हो, इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग दिस बेसिक HTML. और यहाँ पर आप क्विकली HTML लिख सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट पैराग्राफ टैग, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट 5 टाइम्स. सो आई यूज़ P into 5, सो इट विल क्रिएट 5 टाइम्स. तो ये Emmet कोड को सपोर्ट करता है. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई यूज़ div एंड देन आई यूज़ div P, so it will like it is doing this div और उसके अंदर पैराग्राफ आ जाता है. So suppose I want to create a table and I will create table और उसके अंदर tr. So whenever you use a greater than, it represent a child. It means table के अंदर tr as a child, and inside the tr I want to create td, and td मेरे को 2 बार बनाने हैं, and then tr मेरे को 3 बार बिल्ड करना है. So into 3 and then I do tab, so it will look like this. तो टेबल के अंदर TR इट मीन्स टेबल रो, और फिर उसके अंदर TDs ने बिल्ड कर दिए. सो इट सपोर्ट द Emmet. सो नाउ द थिंग इज once we create this thing, for example I create this table, or either I create let's say h1 tag, and inside this I am writing I am first page. This is I am writing, and now I want to run this thing. मैं इसे चला कर देखना चाहता हूँ. So to run this thing I need an extension, and this extension name is called लाइव सर्वर. तो ये एक टेम्प्रेरी सर्वर यहाँ डाल देगा, और अगेन यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा. यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बिकॉज आई ऑलरेडी इंस्टॉल इट टू जस्ट सेव द टाइम. वंस दिस थिंग इज गेट इंस्टॉल, यू नीड टू जस्ट डू राइट क्लिक हेयर, एंड देन यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड ओपन विद लाइव सर्वर, एंड योर एप्लीकेशन इज रनिंग इनसाइड द लाइव सर्वर. और वो यहाँ पर आपका IP, लोकल IP विद पोर्ट नंबर एंड देन index.html that is running. So it means your application is running on some temporary server by using this live server. Now the thing is, whatever the code you are writing here, जैसे हम कोई भी यहाँ पर कोड लिखना शुरू करते हैं. So for example I am writing P and I am writing test para. So whatever the text you will write, यहाँ पर आपके पास एक white color का डॉट आएगा ऊपर इस टैब में. अगर आप देखें, so there is a white color dot, and if you do Control S, तो it will saved. It means अगर वो डॉट आ रहा है, तो it means you done some editing, because whenever you do some editing, the white dot is coming and it says कि आपने अभी कोड को सेव नहीं किया है. When you do Control S, it means your code is get saved. Now you can have the CSS file also. तो आप राइट क्लिक करो, न्यू फाइल करो, और यहाँ जाकर आप अपना कोई CSS भी बिल्ड कर सकते हो. So let's say I create design.css, as well as we can create the JS file as well. So if I am saying logic.js, तो यहाँ पर आप CSS भी लिख सकते हो, JavaScript भी लिख सकते हो. सो मूविंग टू सम प्रोजेक्ट, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. सो आई जस्ट ओपन दिस प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर प्लेंटी ऑफ फाइल्स. तो यहाँ पर मेरे पास index.html भी है, स्क्रिप्ट्स भी हैं मेरे पास इसके इनसाइड, और उसके अंदर JS फाइल्स हैं, अलग अलग इमेजेस भी हैं, CSS भी हैं. सो योर VS Code हैव डिफरेंट फाइल्स, और उन सब के पास अलग अलग आइकन्स आ रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग दिस VS Code आइकन्स. अब अगर मैं वो किसी भी फाइल पे रीच करना है, देयर आर सम शॉर्टकट्स. सो हम उन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं. Control P फॉर विंडोज़ और Command P फॉर मैक. सो इफ़ यू प्रेस दिस थिंग, और यहाँ से जाकर इफ़ आई राइट लेट्स से task.js, तो मैं डायरेक्टली किसी फाइल पे रीच कर सकता हूँ. सो Control P और Command P, दिस कमांड इज़ बेसिकली यूज टू पिकिंग अ फाइल फ्रॉम द लार्ज प्रोजेक्ट. तो आप इसके थ्रू किसी भी फाइल पे रीच कर सकते हो. अगर आप यूज़ करते हो शॉर्टकट की में कंट्रोल या कमांड B, so it will actually show hide your this editor. So this basically your project explorer will be show and hide by using this command. इसी तरीके से अगर आप किसी की भी डेफिनेशन में पहुंचना चाहते हो किसी भी कोड में, so for example I have plenty of functions inside it. So for example if I let's say I go to this, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे functions हैं जो एक दूसरे को कॉल लगा रहे हैं. So suppose I want to go for any definition, so if I click on this, प्रेस करना है मेरे को कंट्रोल या कमांड फॉर मैक, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो आई विल डायरेक्टली रीच टू दिस डेफिनेशन.
नाउ आफ्टर यूजिंग दिस कंट्रोल क्लिक हम बात करते हैं कोड की फॉर्मेटिंग करने के ऊपर। तो अगर हमारे पास कुछ कोड है जो कि अनफॉर्मेटेड है, उसमें स्पेसिंग ज़्यादा है यहाँ पर, या कुछ एडिशनल एंटर्स हैं जैसे हमारा कोड अलाइंड फॉर्मेट नहीं है, तो अगर हम कोड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कोड को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ F प्रेस करता हूँ। तो मैक में शिफ्ट के साथ ऑप्शन F है। सो व्हेन यू प्रेस दिस थिंग सो इट विल एक्चुअली फॉर्मेट योर कोड। तो वो कोड की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देगा, प्रॉपर अलाइनमेंट कर देगा। दैट इज़ अ शॉर्टकट फॉर डूइंग योर फॉर्मेटिंग। अगर आप अपने कोड को जूम करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, तो इससे आपका पूरे एडिटर के आपके आइकन्स, आपका कोड जूम, तो कंट्रोल प्लस से जूम कर रहे हो, आप कंट्रोल माइनस से अनजूम कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू ओपन अ टर्मिनल हेयर तो आप कंट्रोल और एस्केप की प्रेस करते हो, सो इट विल ओपन अ टर्मिनल विंडो हेयर। तो अब आप यहाँ से कमांड्स से भी काम कर सकते हो। तो इफ़ यू आर यूजिंग रिएक्ट और एंगुलर, सो दे प्रोवाइड सम CLIs, तो आप सब कुछ कमांड लाइन करते हो, तो आप इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन दिस फीचर वी विल लर्न कि सपोज लाइन नंबर 163 पे मेरे पास इमेज नाम का वेरिएबल है, और ये जो इमेज वेरिएबल है इट इज़ अकर्ड 163 से लेकर 171 तक अकर है। सपोज आई वांट टू रिप्लेस दिस वेरिएबल नेम, तो मैं इमेज पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ ये इसकी जितनी भी अकरेंस है सबको सिलेक्ट करता है। अब सपोज आई वांट टू रिप्लेस दिस नेम विद IMG, तो मैं यहाँ पर जाकर इस सिलेक्टेड वेरिएबल पे जाकर कंट्रोल D प्रेस करता हूँ, तो जहाँ जहाँ इसकी अकरेंस है वहाँ ये कर्सर प्लेस करना स्टार्ट करता है। एंड नाउ आई प्रेस डिलीट की एंड आई टाइप IMG, so it will be get replaced by this IMG. So after this if I click anywhere, ये मल्टी कर्सर मोड अपने आप omit हो जाता है। Now this is the way you can replace the multiple variable. So if you want to learn more things on the VS Code, I recommend कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, that is code.visualstudio.com/docs, and from here you can learn more things. So guys, I hope you enjoy the video. Thank you very much.